we have calculated the values of x and y. Can you see the question? Yes. ठीक है? Yes, sir. We have all the positive values for y and we have negative values of x. So it means we need to draw only two quadrants where x positive and y where x remains positive or negative while y remains positive only. देखो हम लोग जब ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम लोग थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं. एंड व्हाट आर दोज मिस्टेक्स? वी लेविशली यूज आवर ग्राफ. हम अपने ग्राफ को जाया कर रहे होते हैं. समटाइम्स वी ड्रॉ द quadrants which are not necessary. हमें कुछ ऐसे quadrants भी बना लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती. Like in this scenario, like as I told you earlier, that in every graph there are four quadrants. In first quadrant x and y both positive. In second quadrant x negative, y positive. In third quadrant x and y both negative. And in fourth quadrant x positive, y negative. ठीक है. In this scenario, what we have in the question number 3, we have all the negative values of x and we have all the positive values of y. It means we don't require to draw quadrant number 3 and quadrant number 4 because we don't have negative value of x and y or we don't have negative value of y. So हमने अपने ग्राफ पेपर को बचाना है and we just need to draw quadrant number 1 और quadrant number 2. ये बात समझ में आई कि क्यों? क्योंकि आप लोग अपने ग्राफ पेपर को जाया कर रहे होते हो बहुत दफा. ठीक है. अब हम वैल्यूज की तरफ चलते हैं. मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैपिंग एंड स्केलिंग. किसी ने देखी नहीं होगी. सर मैंने आधी देखी थी. आधी के बाद वो आधी भी नहीं देखी तुमने. 3 से 4 मिनट की देखी है. सर वो थोड़ी सी शुरू में लगा के देखी थी, हटा दी चलो. मैं यही कह रहा हूँ ना, तुमने 3 मिनट से ज्यादा की नहीं देखी. अच्छा, हाउ कैन वी स्केल? वी नीड टू ड्रॉ the values of x axis from 0 to -5. मतलब हम लोगों ने x axis की वैल्यू सिर्फ 0 से -5 तक ही ड्रॉ करनी है because we have the values of x that is equals to -5 to 0. So don't waste your graph paper, just draw the values of x that is equals to -5, -4, -3, -2, -1 and 0. And we can draw it like this. 1 centimeter box equals to 1 unit. ये बताओ तुम में से आज तक किसी ने स्केलिंग की है या नहीं की है? देखो सही से बता दो, अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं. सर किया था, याद नहीं आ रहा. अच्छा, देखो दिस इज द सेंटीमीटर ग्राफ. नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन पे? यस जी सर. सर. ठीक है. दिस सेंटीमीटर ग्राफ रिप्रेजेंट्स और टेल अस व्हाट दिस इज अ big box and big box equals to 1 centimeter and every big box consists of 5 small boxes. Can you see these 5 small boxes? So there are two kind of boxes in graph. One large box that is equals to 1 centimeter and 5 small boxes that is equals to small boxes or 0.2 centimeter. सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें जो बड़ा डब्बा नजर आ रहा है इसको हम सेंटीमीटर बॉक्स कहते हैं या सेंटीमीटर वैल्यू कहते हैं. ठीक है, नजर आ रही है ये चीज? ग्राफ पेपर तुम में से है किसी के पास अभी? नो सर. ग्राफ पेपर किसी के पास? नहीं है. अच्छा, चलो पहले तो फिर मुझे तुम ये बता दो कि अगर मैंने x एक्सिस में वैल्यूज प्लॉट करनी है, इफ वी नीड टू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ x एक्सिस, वी हैव ओनली 6 वैल्यूज दैट इज -5, -4, -3, -2, -1 और 0. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर अलोंग x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. मतलब मैं हर सेंटीमीटर के लिए 1 यूनिट कंसीडर करूंगा. अब तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ क्लियरली कि ये मेरे पास ओरिजिन मौजूद है, then -1, then -2, -3, -4 and -5. यहां तक कोई मसला है तो सबसे पहले बोलो. नो सर. Along x-axis we are taking the scaling of 1 centimeter equals to 1 unit. 1 centimeter equals to 1 unit. हर 1 1 सेंटीमीटर का डब्बा एक वैल्यू के बराबर होगा. So we need to put x equals to -5, -4, -3, -2, -1. ठीक है. And what are the values of y we got? We have the values of y equals to 410149. So the minimum value of y equals to 0 and the maximum value of y equals to 9. So we can consider it 1 centimeter or 1 box equals to 1 unit. It means this is your 1, this is your 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9.
So the basic thing of a graph is the scaling. If you are doing your scaling perfectly, then you can draw your graph easily. And for this, you first of all you need to check the values of x and y and find the range of these values. अब मेरे पास x की 5 वैल्यूज है, कहाँ से कहाँ तक -5 से 0. So इसका मतलब मैं ग्राफ में along x axis I can take easily 1 centimeter equals to 1 unit. But when we are talking about y axis, we have the minimum value of 0 and the maximum value of 9. So we can consider along y axis that 1 centimeter equals to 1 unit. अब मैं इसको प्लॉट करना शुरू कर रहा हूँ. तुम मुझे वैल्यूज बताओ. When x equals to -5, what was the value of y? When x equals to -5, what was the value of y? चलो भाई बताओ. ये वैल्यूज लिख लो बल्कि अपने पास, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी. जकरिया, नौफल, यूसुफ, जकरिया, जी सर. उमर शराफत. बेटा ये वैल्यूज लिख लो, क्योंकि ये वैल्यूज हमने ड्रॉ करनी है, तो बार बार इस स्क्रीन पर आने में टाइम ज़ाया होगा. तो हम तुम्हारे पास लिखी भी होंगी तो हमारे लिए थोड़ी आसानी रहेगी. लिख ली बेटा वैल्यूज. बेटा वैल्यूज लिख ली. Yes, sir. Okay, so we should start to draw the graph, and the value of x equals to -5, the value of y equals to 4. So select the point where we need to plot the graph. Where we need to plot this point, x equals to -5 and y equals to +4. जकरिया, Yes, sir. वो पॉइंट प्लॉट करो जहां पर ये पॉइंट आना चाहिए. -5 का. -5, 4. x equals to -5, y equals to +4. For this you need to moving through from -5 or x and move upward until you get the line of. करो बेटा, मार्किंग करो, कहाँ बना रहे थे ये, सही बताओ. सर इस जगह. इस जगह पर बनेगा, because at that point, at that particular point we have the value of x equals to -5 and y equals to +4. सही है. now फिर दूसरा पॉइंट, x equals to -5 and y equals to +1. x equals to -4 and y equals to +1. चलो जल्दी से. नौफल, यस सर बता रहा हूँ. x equals to -4 and y equals to +1. जल्दी जल्दी, we do not have so much time, my friend. सर यहाँ पे बेटा x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +1. x की वैल्यू -4, y की वैल्यू +1, जहां नहीं बनेगा. पहले तो तुम x यहाँ की वैल्यू बनेगा. -4 था. एग्जैक्टली, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +1 इस जगह पर बनेगा. ठीक है. सो वी कैन ड्रॉ आवर पॉइंट हियर. ठीक है. उमर शराफत, जी सर. x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0. ये तो बहुत आसान है. विलियम आएगा.
-3 यहाँ पॉइंट बनाओ, पॉइंट वहां लगाओ। But you have the annotation option, na? Just place the point there. Mark that point where we need to plot this value. Umar, first you need to point x equals to -3. X equals to -3. यस सर Beta, that is not x equals to -3. X equals to -3 is that ये point. This point is x equals to -3 and y equals to 0. This is the point where x will be -3 and y will be 0. Got it? यस सर ठीक है, यूसुफ अनम्यूट योर माइक बेटा जल्दी से। कल भी तो आखिरी Yes, वक्त sir. में आके अटेंडेंस लगवा कर भाग गए थे, लेकिन अटेंडेंस लगी नहीं है तुम्हारी। यू नीड टू प्लॉट x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू +1। प्लॉट द वैल्यू। सर जी ये डॉट कैसे लगाएंगे? बेटा, यू हैव द एनोटेशन ऑप्शन। तुम्हारे पास एनोटेशन का ऑप्शन आएगा जूम के अंदर। एनोटेशन का ऑप्शन निकालो और वहां पर क्लिक कर दो जहां तुम पॉइंट प्लॉट करना चाहते हो। सर हमें आ नहीं रहा ना। तुम्हारे पास ऊपर एनोटेट का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर लेकर जाओ कर्सर, बिल्कुल मिडिल ऑफ द स्क्रीन में ऊपर लेकर जाओ। लेके चलेंगे सर। उसमें एनोटेट का ऑप्शन आ रहा है। बहुत हाँ शरीफ सर। आदमी हो, बस नहीं आ रहा। नहीं अरे यार, जो बिल्कुल ऊपर लेकर जाओ तुम स्क्रीन। सर ले गया ना अब स्क्रीन कुछ पर। ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर की तरफ। नहीं बोला सर बेटा, जूम यूज करना आता है? पक्की बात बताना, झूठ नहीं बोलना। सर थोड़ा थोड़ा आता है। तुम्हें एनोटेट करना नहीं आता? हर बच्चा जूम में सबसे पहले एनोटेट करना सीखता है। खैर चलो भाई जकरिया, -2 और 1, लेकिन तुम्हारी जान अभी बख्शी नहीं है, ये मैं बता दूं तुम्हें। तुमसे फिर सवाल करूंगा। ओके जकरिया, -2 +1। जकरिया, यस सर। -2 +1 कहाँ प्लॉट होगा बेटा? सर यहाँ पे -2 +1 इस जगह पर प्लॉट होगा। ठीक है। नौफल, -1 4। नौफल, -1 4। जल्दी बेटा, एक सवाल और करना है, जल्दी। यस सर। -1 +4। -1 +4 का मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +4। जल्दी जल्दी जल्दी। नौफल, इस बार सही बताना। इतने सारे पॉइंट, इतने सारे पॉइंट बेटा, 7 सिर्फ इस जगह पे। यस सर। उस्मान की पास के शाम में ठीक है। Yes. उमर शराफत, तो बता x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। उमर शराफत, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। इक्वल टू 0 9 अब ये बात याद रखना, जब मैं सर दोबारा x बता रहा हूँ, मैंने कहा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेन आई आस्क यू टू ड्रॉप अ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे कभी भी कहूँ कि एक पॉइंट प्लॉट कीजिए दैट इज x इक्वल टू 0 है, तो लाजमी तौर पर वो पॉइंट y एक्सेस के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू plot a value in which y is 0, it means that point must be plotted on x axis। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। जी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। खैर, मैं कह रहा हूं तुमसे 0, 9। The first value must be of x, so the value of x equal to 0 and the value of y equals to 9। Now tell me, where should we plot these values? सर
सर ये 9। 9 किस जगह? पॉइंट करो ना, तुम्हारे पास एनोटेटर है तो यस सर। करो, पॉइंट करो प्लॉट। दिस 9, ये वाला। वेरी गुड, वेरी गुड उमर। Here should be 0, 9 because on y-axis the value of x equal to 0. ये चीज समझ आई उमर? जी सर। 0, 9 का मतलब the value of x coordinate is 0 and the value of y coordinate is 9. Got it? अब ये तो तुमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. Now come to the important point where you need to draw the graph. In order to draw the graph, you should have a pencil with sharp edge. तुम्हारी पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. दूसरी बात, तुम्हारी पेंसिल ना सिर्फ शार्प होनी चाहिए बल्कि तुमने ये ग्राफ कभी भी स्केल से ड्रॉ नहीं करना, बल्कि तुमने इसको हमेशा हल्के हाथ के साथ ड्रॉ करना है, लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ. लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त पेन से नहीं कर रहा, टच पैड से कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है. Got it? You need to draw like this. अब मैं अपना आंसर चेक करना चाह रहा हूँ कि what we have written or what we have drawn is correct or not. So can anyone tell me about the equation of the point? What was the equation of this line? X square plus 6x plus 9. Chalo, let me check. X square plus 6x plus 9. देख लो बेटा, बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन बन रही है, ऐसा ही डायग्राम बन रही है, देख लो. समझ आया बेटा? लेकिन क्योंकि वो उन्होंने कंप्यूटर से ड्रॉ की है और हमने क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया, तो इट कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज द इमेज. ठीक है, लेकिन बनेगी बिल्कुल ऐसे ही. यहां तक कोई परेशानी किसी को तो पूछ लो. नो सर. नौफल, नो सर. उमर शराफत, उमर शराफत, नो सर। ये चीज समझ आई? जी सर आ गया, छोड़ो चलो, बताए। अब जरा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 में से कोई एक पार्ट जल्दी से पिक करो. यू नीड टू सिलेक्ट एनी पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7. सर मैं हाँ तुम. सर ये 6। 6. In question number 6, first of all you need to find the values of y. You have the values of x that is equals to -4 से लेकर 2 तक. X equals to -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2. And you need to put these values in equation that is y equals to 4x square plus 12x plus 9. So you will get 7 values of y. सही है? पहले आपने जी x सर। की वैल्यूज मालूम कर ली, फिर आपने y की वैल्यूज मालूम कर ली. यहाँ तक कोई मसला? नो सर. अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी तो करना ही भूल गए. Hence solve the equation that is x equals x square plus 6x plus 9. हमने सॉल्यूशन मालूम करना है. अच्छा चलो, एक मिनट के लिए मैं इसको ड्रॉप करता हूँ. पहले ये बता दो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा. जी क्वेश्चन नंबर 6 में तुम सबसे पहले क्या करोगे? इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट कराओगे, दैट इज इक्वल्स टू -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2. ठीक है, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. देन यू नीड टू ड्रॉ दीज वैल्यूज अलोंग द ग्राफ पेपर, जैसे हमने इससे पहले किया था. ठीक है, 4, 5, 6 और 7 में से तुमने कोई दो पार्ट करना है. सारा काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में किया गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स देख लो. पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है उसका क्या आंसर होगा. Hence solve the solution x square plus 6x plus 9. बेटा, जब भी तुमसे कहा जाए ना कि solve the equation from the graph, तो तुम सिर्फ ये देख लो, मैं नौफिल और उमर शराफत तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस को किस जगह पर कट कर रही है. जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ.
नौफल और उमर शराफत अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। नौफल और उमर शराफत आवाज नहीं आ रही तुम दोनों को मेरी? सर क्वेश्चन एकदम फिर से बताइएगा। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ बेटा कि जब भी तुमसे कहा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द सॉल्यूशन, जैसे भी तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना पार्ट 3, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, तो तुमने ये देखना है कि तुमने जो कर्व ड्रॉ किया है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना एक कर्व ड्रॉ, वो कर्व या अभी जो तुम्हारे सामने एक कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, ये कर्व एक्स एक्सिस पर किस जगह पर टच हो रहा है बताओ। सर ग्राफ आ नहीं मेरे पास। बेटा तुम्हारे पास ग्राफ नहीं आ रही? अच्छा बुक अब आ आ रही रहा है है मेरे पास, नजर? ग्राफ नहीं। अब आ रहा है? यस सर आ गया। अब मुझे बताओ कि ये ग्राफ, ये कर्व एक्स एक्सिस को किस जगह पर टच कर रहा है? 9 पे सर। नहीं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। -3। -3, सो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। समझ आई ये चीज? यस सर। ठीक है, क्योंकि हम जब सोल्यूशन सेट मालूम कर रहे होते हैं, हम जब रूट्स मालूम कर रहे होते हैं, जब हम इक्वेशन का सोल्यूशन, तो हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0 किस वक्त होती है? जब कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, x एक्सिस पर अगर आप मूव कर रहे हो तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो ग्राफ में ये वैल्यू किस तरीके से निकालोगे? जिस जगह पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैथमेटिकली कैसे करोगे? पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 लेकर सॉल्व कर लोगे, जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A में करना सीखा था। कैसे? जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड कर रहे थे, याद आ रही है ये बात? यस सर। ठीक है, अब सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एक चीज, जरा इक्वेशन तो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब जरा गौर से देखो, अब मुझे ये बताओ मेरा बच्चा कि इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किस जगह पर मौजूद है? सर -2। नहीं, -2 पर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, -2 पर तो नहीं है। 9 पे। माइनस, अरे भाई एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है ये? ओ सर -1.5। -1.5 पर, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा? -1.5। तो प्लॉटिंग तो तुम लोगों को आती है कि तुम लोगों ने प्लॉट किस तरीके से करना है। पहले तुम लोगों ने x की वैल्यूज पुट करवा कर y की वैल्यूज लेनी है, एंड देन यू नीड टू प्लॉट द वैल्यूज। प्लॉट किस तरीके से करोगे? प्लॉट करोगे बहुत ही हल्के हाथ के साथ विद शार्प एज, और शार्प एज का मतलब लाइक दिस, बिल्कुल इजी। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप स्केल से ड्रॉ नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा लेकर चलो, थोड़ा सा 19-20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, सो दिस इज द वे। अब बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे या नहीं कर सकते? अभी भी नहीं कर सकते तो बता दो। सर कर लेंगे। हाँ भाई, नौफल, यूसुफ, उमर शराफत, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम लोगों ने करना है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई 2 पार्ट तुम लोगों ने करने। तो अपनी मर्जी के 2 पार्ट सेलेक्ट कर लो जो तुम लोग करोगे। नौफल, उमर शराफत और मोहम्मद यूसुफ, आप लोग कुछ यस बोलिए। सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो? y equals to 10x minus 25 minus x square. ठीक है, and you need to put the values of x that is equal to 0 to 10. ठीक है, and then you need to put all the values on the graph to draw a graph. So मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों को अभी कोई मसला होना चाहिए। अच्छा बेटा, कभी कभार ऐसा भी होता है, जाने से पहले एक आखिरी बात, कि समटाइम्स
a graph or a curve can cut x-axis from कौन two आया था? positions. क्या कह रहे हो? हमें कमीज दो, दुकान से चोरी करके लाया। हमें अकेले भाई थे? दो ना। ये कौन बच्चा है यार? सर जी नौफल, सर हमारे हाँ बोलो यस सर। बोलो। उमर क्या यूसुफ, बोलो जल्दी बोलो। सर हमारे पास बुक नहीं है, आप वो बुक का ग्रुप में शेयर कर सकते बेटा हैं, गूगल बुक ये क्लासरूम में पड़ी हुई है, गूगल क्लासरूम में मैंने बुक अपलोड की हुई है, वहां से उठा लो। अच्छा बेटा सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दो, अगर तुम्हारे पास ग्राफ इस तरीके का बन रहा है, अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होंगे? जल्दी से बता दो बस मुझे। नौफल, यूसुफ, जकरिया, उमर, शराफत, मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दे दो, अगर आपके पास सॉल्यूशन इस तरीके का, ग्राफ इस तरीके का बन रहा हो, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होंगे? x इक्वल्स टू हम्म -1.5 और और पॉजिटिव नहीं सर, 1.5। y इक्वल्स टू वेरी गुड। -1.5 दो वैल्यूज होंगी, h इक्वल्स दो वैल्यूज होंगी क्योंकि ये x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है। द फर्स्ट वैल्यू वुड बी x इक्वल्स टू -1.5 एंड द सेकंड वैल्यू इज x इक्वल्स टू +1.5। ठीक है? यस सर। ठीक है, मतलब आपसे जब भी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछा जाएगा, योर आंसर वुड बी एज दैट पर्टिकुलर ग्राफ कट द x एक्सिस। तो जिस जगह पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होगा, यू नीड टू राइट दोज वैल्यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? यस सर। कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। सर ठीक है, नो। कल तक मुझे एक्सरसाइज 1C तक कंप्लीट करो बेटा, जहाँ तक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा स्पीड में जाना है। रीज़न क्या है? टाइम कम है और सिलेबस इस बार काफ़ी ज़्यादा। ठीक है बेटा, चलिए किसी के जहन में कोई सवाल तो वो पूछ सकता है, वरना मदरसा बंद करते हैं। आप चारों के अलावा कोई नहीं है आज क्लास के अंदर? नो सर। ठीक है, अपनी क्लास में जाकर आज बोल देना कि कल सर टेस्ट लेंगे 5 नंबर। चलिए, खुदा